ये देखो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ देव जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? बस बढ़िया। आप कैसे सर जी? सर बहुत बढ़िया एकदम। नमस्कार सर, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है सर। हाँ जी, श्योर सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। On the behalf of Sonipat branch of NIRC of ICI, a very warm welcome to our today guest speaker, CS Divesh Goyal ji, our branch chairman, CA Anuj Mangla ji, vice chairman, CA Saraj Jain ji, ex-chairman and executive member, CA Prince Mittal ji. I also warm welcome and appreciate the presence of dignitaries of our branch ex-chairman, CA Vinod Jain ji, CA Praveen Madan ji. And I also very welcome to our all other respected members. It is our privilege to hear CS Divesh Goyal ji on live webcast for sharing valuable knowledge on today topics, annual compliance for private limited companies, along with extension of AGM under Companies Act. Before starting the session, I would like to share a brief profile of CS Divesh Goyal ji. CS Divesh Goyal ji is fellow member of Institute of Company Secretary of India, having rich experience in legal and secretarial matters. He is young and energetic practicing company secretary with zeal to dig up into the nuances of corporate laws. Being a researcher at heart, he has done rigorous research and has written various articles on the Companies Act 2013 to keep at a pace at the latest changes of the critical analyze the implication of various provisions of the Companies Act. His articles have been published in ICSI magazines and popular at the various professional websites. He has also deliberated at the various forum of company law and allied matters. He is also co-authored of various publications of ICSI, company law, premium and the books also. Thank you, CS Divesh Goyal ji. Now I invite our branch chairman, C. Anuj Mangla, for welcome speech. C. Anuj Mangla ji. Thank you, Arora ji. Respected CS Divesh Goyal ji, guest speaker of today webinar, entire committee of Sonipat branch, especially thanks to Arora ji, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ entire हमारे पास्ट चेयरमैन ऑफ सोनीपत ब्रांच एंड एंटायर मेंबर एंड स्टूडेंट ऑफ सोनीपत ब्रांच, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरोड़ा जी से कि अरोड़ा जी आगे प्रोसीड करें। थैंक यू। Thank you, Chairman Saab. Now I request our today guest speaker, CS Divesh Goyal ji, to start his technical session on company's compliance. CS Divesh Goyal ji. Thank you so much, Rajesh ji, Anuj ji, for the invitation for this webinar, and thanks to the chapter also, Sonipat chapter of ICSI also for inviting me for the today's opportunity. So as we know, due to COVID-19, every due dates and everything has been changed. चाहे वो कंपनी लो हमारा या जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, आज की डेट में कोई ड्यू डेट स्टेबल नहीं है। तो उन्हीं ड्यू डेट्स के कारण साथ में कंपनी लॉ में भी सारी ड्यू डेट्स चेंज हो चुकी है, या काफी सारी ड्यू डेट इस ईयर के लिए काफी सारी हमारी डिफरेंट चल रही है। अब वही है, कोविड का कुछ इम्पैक्ट, डेफिनेटली इम्पैक्ट्स तो वास्ट इम्पैक्ट तो है, बट देयर आर द सम गुड पॉजिटिव थिंग्स आल्सो कि कोविड के कारण वी ऑल नाउ वेरी कंफर्टेबल विद दिस वीडियो मीटिंग्स। वरना जनरली तो सेमिनार से ही हम सेटिस्फाइड होते थे, वीडियो मीटिंग से या वेबिनार जैसी चीजों को जनरली अवॉइड करते थे। इवन जैसे बोर्ड मीटिंग का कंसेप्ट था, बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहले जनरली हमारा हमेशा रहता था कि बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब भी करवाने की बात होती थी तो हम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे या कंफर्टेबल नहीं फील करते थे। बट ड्यू टू कोविड-19 लास्ट सिनेरियो, जो लास्ट 4 मंथ में सिनेरियो चेंज हुआ है, नाउ वी कैन से कि वी आर नाउ कंफर्टेबल विद द video conferencing, board meetings and all. So our today's topic is the annual compliances for the private limited companies. As we know, in India, there are almost 70% of the companies are the private limited companies. And the most important thing about those companies, whenever we are working as a chartered accountant, as a company secretary, we always have to understand what are the minimum compliances for a company. Because there are two things. Whether a company can be a working company or company can be a non-working company also. We all are having a lot of companies which are having nil turnover, and we all are having the companies which are having turnover of crores, in 1,000 crores, in 100 crores.
So there are both type of companies. Every professional are handling, like you all are the chartered accountant as a company secretary. We are handling all type of companies. But there is always a lack, or we can say there's always a question in our mind as a professional. Ki, just ask a simple question. Ki whenever a new client approach to us, and that client asks to us, ki, I want to incorporate a company. I want to incorporate a private company. How much shall be the compliance cost of the year? What shall be the minimum compliances of a year? अब जो ये minimum compliances या minimum mandatory compliances की हम बात करते हैं, these compliances, these mandatory compliances practically are not based on the turnover, are not based on the capital requirements. These are the compliances whether our companies are working, whether our companies are not working, but हमें वो compliance करने ही पड़ेंगे. तो जो हमारा आज का जो इस वेबिनार का मोटो है, जब राजेश जी से भी डिस्कस हुआ तो मेरा मेन मोटो यही था कि आज के वेबिनार में वी अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट एक प्राइवेट कंपनी को ईयरली क्या-क्या मैंडेटरी कंप्लायंसेस करने ही पड़ते हैं. Because as we know these days as a chartered accountant, there are a lot of responsibilities on the chartered accountants also about the compliances of the company law. Scenario था 1956 एक्ट में, जब जनरली क्या होता था कि कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस के रिस्पांसिबिलिटीज एज अ ऑडिटर इतनी ज्यादा नहीं होती थी जो सिनेरियो आज की डेट में है. आज की डेट में अगर आप कारो का स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इन 21 पॉइंट्स ऑफ द कारो दे हैव मेंशन्ड सम सेक्शंस कि उन सेक्शंस पे आपको स्पेसिफिकली कमेंट करना पड़ता है, उन सेक्शंस पे स्पेसिफिकली कंप्लायंसेस चेक करने पड़ते हैं, लाइक सेक्शन 197 रेम्यूनरेशन टू MDs and director. और now they have mentioned specifically कि 197 पे आपको कमेंट करना है, आपको चेक करना ही है. इससे भी इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है सेक्शन 73 डिपॉजिट्स एंड लोन. अब सेक्शन 73 को they have made the part of the कारो also कि जब आप लोग कारो प्रिपेयर करेंगे तो सेक्शन 73 को एज अ पार्ट ऑफ द कारो आपको सेक्शन 73 का कंप्लायंस चेक करना पड़ेगा. सेक्शन 73 तो ऐसे ही काफी सारे कंप्लायंसेस है, काफी सारे सेक्शन है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रिस्पांसिबिलिटी आप लोगों पर आ गई है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी जो रिस्पांसिबिलिटी प्रोफेशनल्स पर आ गई है, तो उन सभी कंप्लायंसेस के लिए नाउ वी कैन से कि कंपनीज एक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्लायंसेस. नाउ आज की डेट में कंप्लायंसेस को फुलफिल करने के लिए कंपनीज एक्ट एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. बिकॉज व्हाटएवर यू आर डूइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट, आपको वहां पे भी कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस चेक करने हैं. वेदर यू आर सर्टिफाइंग एनी फॉर्म लाइक एनुअल फॉर्म्स, वहां पे भी आपको कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस चेक करने हैं. तो इट्स दिस लॉ इज आल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ इंपैक्ट ऑन मेनी थिंग्स. और जब 1956 एक्ट था और आज की डेट में जब कंपनीज एक्ट 2013 है, तब सिनेरियो टोटली ही डिफरेंट हो चुका है 1956 से आज की डेट में. 1956 एक्ट में कंपनीज एक्ट की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी का जनरली क्या सिनेरियो रहता था. If in general कोई पर्सन अगर एज ए कोई प्रोफेशनल और कोई लेमैन इफ आस्किंग कि प्राइवेट कंपनी के क्या कंप्लायंस होते हैं, जनरली एक सिंपल आंसर होता था प्राइवेट कंपनी को ईयर में मैंडेटरीली कंपनीज एक्ट में बस 2 फॉर्म फाइल करने होते हैं. ये मैंडेटरी कंप्लायंसेस है. इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज के लिए कोई भी इशू नहीं है, कोई भी कंप्लायंसेस का टारगेट नहीं है. बट ये होता था कि ये 2 कंप्लायंसेस प्राइवेट कंपनी को मैंडेटरीली करने ही है एवरी ईयर. अब ये 2 कंप्लायंसेस करने होते थे 1956 एक्ट में, बट जब ये कंपनीज एक्ट जब 2013 आ गया, ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया था. कंपनीज एक्ट 2013 में क्या हुआ कि कंपनीज एक्ट 2013 जब भी इंप्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2014 से, कंप्लायंस लेवल ड्रास्टिकली चेंज हो गया था. As I can see that the 40 professional chartered accountants are there. Some definitely some senior member have worked in the 1956 and 2013 both. तो जो compliances public company पे applicable होते थे, जो compliance level public company का होता था, private company का compliance level भी companies at 2013 आने के बाद exactly same footage पे आ गया था. There was a minor difference कि public company का क्या compliance है private company का. तो जब इतना ज्यादा compliance level बढ़ गया, reporting बढ़ गई, तो there was a issue with the professional and the corporates की private limited companies को कैसे रन करना है, private limited companies को रन करने के लिए क्या strategies यूज करनी है, इतने compliances करेंगे कैसे. Because we know private companies generally क्या होती है, काफी cases में, मतलब we can say in the major cases private companies are created by the 2 brothers, 2 friends, husband wife. Generally private companies का इंडिया में स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, फैमिली स्ट्रक्चर्स रहते हैं.
तब उस केस में कंप्लायंस लेवल और कॉस्ट बियर करना भी क्लाइंट्स के लिए एक टास्क था। तो उन सभी चीजों के बाद, इंस्टीट्यूट्स की रिप्रेजेंटेशंस के बाद, फाइनली मिनिस्ट्री केम आउट विद द नोटिफिकेशन। They came out with notification on the 5th June 2015 and 13 June 2017. According to these notification, Ministry had given some relaxation to the private limited companies. Private company को कुछ relaxation दी, private companies को कुछ exemption दी. Almost 30 to 35 exemptions private company को दी इन दो notifications के बाद. तो जब ये 30-35 we can say कि exemptions जब private company को मिली, तो इन 30-35 नोटिफिकेशन के बाद एक रिलैक्सिंग लेवल आया प्राइवेट कंपनी के कंप्लायंसेस का। इन 30-35 नोटिफिकेशन एग्जाम्पशंस के बाद क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनीज को कुछ कंप्लायंसेस का एग्जाम मिला, कुछ रिलैक्स मिला। एग्जांपल, जब कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, ऑन 1 अप्रैल 2014, since 1 April 2014 it was mandatory for the private companies also to file e-form MGT 14 for board resolutions. अब board resolution के लिए MGT 14 फाइल करना है। अब प्राइवेट कंपनीज के लिए एक टास्क हो गया था कि हर रेगुलर बेस पे MGT 14 फाइल करने पड़ रहे हैं। कोई भी रेजोल्यूशन पास करो, 90% रेजोल्यूशंस के लिए आपको MGT 14 फाइल करना था। तो इन दो नोटिफिकेशन से मिनिस्ट्री ने वो एग्जम्पशन दी कि प्राइवेट कंपनीज को एग्जाम कर रहे हैं उन क्या बोल सकते हैं सरी उन कंप्लायंसेस से। तो इसी टाइप से और भी काफी सारी एग्जम्पशंस प्राइवेट कंपनी को दे। डिपॉजिट के सेक्शन में काफी एग्जम्पशंस आई, कोरम के लिए काफी एग्जम्पशंस आई। तो एक स्मॉल करके देयर वाज ऑलमोस्ट 35 एग्जम्पशंस। जब ये 35 एग्जम्पशन आई तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का जो सिनेरियो था वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ। वो मोर और लेस इट केम इनटू द स्टेटस ऑफ द 1956 एक्ट। सो जो प्राइवेट कंपनीज का 1956 एक्ट में कंप्लायंस लेवल था उस लेवल को मेट किया इन एग्जम्पशंस ने। बट सिर्फ इन एग्जम्पशंस का बेनिफिट हुआ। 5 जून 2015 को एक नोटिफिकेशन आ गई थी, सेकंड 13 जून 2017 को आ गई थी। बट रिसेंटली, अगर रिसेंटली हम लास्ट ईयर की बात करें, कैलेंडर ईयर 2019 की, कैलेंडर ईयर 2019 में मिनिस्ट्री ने बहुत सारे न्यू कंप्लायंसेस ऐड किए हैं। फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर 2019 में मिनिस्ट्री ने बहुत सारे नए फॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए। इवन जैसे यू ऑल आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, you all are the CA professionals, आप लोगों के केस में तो रेगुलरली होता ही है कि एवरी मंथ कोई ना कोई ड्यू डेट है। आज TDS की ड्यू डेट है, आज GST की ड्यू डेट है, आज कोई और ड्यू डेट है। तो आप लोगों के तो रेगुलर बेस पे ड्यू डेट्स रहती है। बट प्रैक्टिकली कंपनीज एक्ट में रेगुलर बेस पे ड्यू डेट्स नहीं होती थी। ऐसा नहीं होता था कि कंपनीज एक्ट में एवरी मंथ कोई फॉर्म फाइल करना है। बट 2019 एक ऐसा कैलेंडर ईयर था कि 2019 में एक सिंगल मंथ भी ऐसा नहीं था जब कंपनी की फॉर्म फाइलिंग की कोई ड्यू डेट नहीं हो। तो 2019 में बहुत सारे नए फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, बहुत सारे नए कंप्लायंसेस इंट्रोड्यूस हुए। और वो जो नए फॉर्म और नए कंप्लायंसेस इंट्रोड्यूस हुए उससे प्राइवेट कंपनी का आज की डेट में जो सिनेरियो है, जो हम पहले 1956 में बोलते थे प्राइवेट कंपनी के क्या कंप्लायंसेस है, 2 फॉर्म फाइल करने, वो स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग हो गया है। वो स्टेटमेंट कंप्लीटली ओवरलैप हो गया है। आज के डेट में ये स्टेटमेंट बोलना कि प्राइवेट कंपनी को ईयरली सिर्फ 2 फॉर्म फाइल करने होते हैं इज कंप्लीटली अ वेग स्टेटमेंट। बिकॉज अब ऐसा हो गया है कि प्राइवेट कंपनी को ईयर में काफी फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं। जैसा कि प्राइवेट कंपनीज की आप देखिए कि पहले प्राइवेट कंपनीज की जब हम बात करते थे ईयरली फॉर्म्स की बात करते थे। बट अब तो रिसेंटली लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट्स हुए प्राइवेट कंपनी में भी कुछ हाफ ईयरली फॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। प्राइवेट कंपनी में भी नेवर इमेजिन कि हाफ ईयरली में हमें फॉर्म फाइल करने पड़ रहे हैं। तो जो ये सिनेरियो था 1956 एक्ट का, फिर 2013 एक्ट आया, फिर एग्जम्पशंस आई, देन बहुत सारे अमेंडमेंट्स आई। उसके बाद एक सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। और आज की डेट में आई मस्ट से वी विल डिस्कस इन टुडेस वेबिनार वन बाय वन। आई मस्ट से कि प्राइवेट कंपनी की भी अगर हम बात करते हैं, इवन मैं बोलता हूँ नील टर्नओवर ले लो, तो भी 17 कंप्लायंसेस ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनी को ईयरली करने ही पड़ेंगे, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और दूसरी चीज हमें पता है कंपनीज एक्ट में जब से ये कंपनीज एक्ट 2013 आया है पेनल्टी का लेवल्स भी एक लेवल तक इंक्रीज हो गया है कि नाउ अब छोटे-छोटे कंप्लायंसेस को भी छोटे-छोटे नॉन कंप्लायंसेस में भी हावी पेनल्टीज है। पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि आरओसी कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है।
But last year ROC ने last 2-3 years में almost 5 to 6 lakh companies and 14 to 15 lakh डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई किया है। तो एक चीज तो है कि मिनिस्ट्री के चेक्स इंक्रीज हो गए हैं, सेकंड कंप्लायंसेस बढ़ गए हैं, थर्ड पेनल्टीज बढ़ गई है, और जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिटर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो गई है। तो टुडे जो आज हमारा वेबिनार है, इसका जो पर्पस है मेरे अकॉर्डिंग, जो आज सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अटेंड कर रहे हैं, आप सभी के लिए इट्स वेरी यूजफुल की बिकॉज कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर भी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है। बिकॉज आप ऑडिटर रिपोर्ट्स में भी बहुत सारे कंपनी लोग के कंप्लायंसेस पे रिपोर्ट करते हैं, कारों में भी करते हैं, अगर कोई फॉर्म सर्टिफाई करते हैं तो वहाँ अलग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है। आप किसी भी फॉर्म को सर्टिफाई करते हैं तो नीचे स्पेसिफिकली उस फॉर्म के लास्ट में मेंशन होता है यू आर लायबल अंडर सेक्शन 448 एंड 449 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 448 बात करता है पेनल्टीज की, 449 बात करता है कि इंस्टीट्यूट क्या क्या एक्शन ले सकता है आपके अगेंस्ट। तो नाउ जो कंपनी लोग के कंप्लायंसेस है पिछले 6 सालों में 2013 से लेके आजकल जो चेंजेस आए हैं आज तक, those are very important, very much important for a professional like you as a chartered accountant or a company secretary. So let's start with our today's webinar by discussing the provision of the private company. As we know, the definition of private companies are mentioned under section 2 clause 68 of the Companies Act 2013. As per 268, private company means a company which by its article, as we know, प्राइवेट कंपनी का नेचर और पब्लिक कंपनी का नेचर डिफरेंट होता है। प्राइवेट कंपनी का रिस्ट्रिक्टिव नेचर होता है, पब्लिक कंपनी का ओपन नेचर होता है। प्राइवेट कंपनी पे 3 ऐसे रिस्ट्रिक्शन है जो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्राइवेट कंपनी उसके साथ चलती ही है। फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन फॉर राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स मार्केट में ट्रांसफर अलाउड नहीं होते हैं। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर 200, मैक्सिमम नंबर 200 हो सकते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। Prohibit any invitation to the public to subscribe for any securities. Private limited companies public को ऑफर नहीं दे सकती अपनी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने का। So these are the 3 restriction of the private company. ये 3 ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो थ्रू आउट द लाइफ प्राइवेट कंपनी के साथ चलती है। Further, before going to discussion on the one by one provision, I would like to request to all the participants कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्राइवेट लिमिटेड से रिगार्डिंग, मे बी वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे या नहीं करते हैं आज की डेट में, आज के प्रेजेंटेशन में, स्टिल यू आर हैविंग एनी क्वेरी ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वी विल टेक अप द क्वेरीज अलोंग विद द सेक्शंस आल्सो बिकॉज अभी क्या है कि हम आज की प्रेजेंटेशन में कंप्लायंसेस तो डिस्कस करेंगे, बट इनके अलावा भी आई हैव पर्सनली फील कि मेरे जैसे व्हाट्सएप पे भी लोगों की क्वेरीज आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, मेरा ज्ञान गुरुकुल करके ग्रुप पे क्वेरीज आ रही है, लोगों की सीएफएस से रिलेटेड भी क्वेरीज है, फाइनेंशियल्स के रिलेटेड भी क्वेरीज है। तो व्हाटएवर क्वेरी यू आर हैविंग, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द चैट बॉक्स, बिकॉज़ जितनी ज्यादा क्वेरीज यू विल आस्क कि आपके भी प्रोविजन क्लियर होंगे एंड वो क्वेरीज हेल्प करेगी और भी पार्टिसिपेंट्स को अपनी क्वेरीज क्लियर करने में। सो हमने डेफिनेशन डिस्कस की प्राइवेट कंपनी की। अब कुछ फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स है प्राइवेट कंपनी के, लाइक नो नीड ऑफ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्राइवेट कंपनी पे मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मतलब आज की डेट में अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो मैं बोलूंगा कि आज की डेट में आप 2 रुपए से भी प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि ये 2 रुपए की वैल्यू भी मैंने क्यों बोली है, अगर कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो 2 रुपए क्यों? As per Companies Act, private company must have minimum 2 number of shareholder. अगर आप 2% शेयर होल्डर होंगे तो एटलीस्ट 1-1 रुपए का शेयर सब्सक्राइब करेंगे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आज की डेट में अगर आप प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आई विल लाइक टू से कि प्राइवेट कंपनी आप 2 रुपए की कैपिटल से भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अब पहले जैसा नहीं है कि आपको प्राइवेट कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपको 1 लाख रुपए की कैपिटल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, नहीं, आप 2 रुपए से भी अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। दूसरा, प्राइवेट कंपनीज को जो इनकॉर्पोरेट करने की फीसिस है, आरओसी फीसिस तो कोई लगती ही नहीं है आज की डेट में। अगर आप इनकॉर्पोरेशन करने जाते हो सिर्फ आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है और वो स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड करती है आपकी कैपिटल पे। अगर आपने 10,000 रुपए से या 1,000 रुपए से कैपिटल से कंपनी बनाते हो तो वो स्टैम्प ड्यूटी इन टोटलिटी 100-150 रुपए आती है। तो आज की डेट में हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट फीसिस,
गवर्नमेंट फीसिस तो आप 150-200 रुपए देख के कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और एज वी आर अवेयर कि आज की डेट में हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें अलग से डिन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें अलग से पैन, जीएसटी नंबर, EFIC, EPFI इन सभी को भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ ही हमें ये सारी चीजें, ये सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। पैन नंबर भी इनकॉर्पोरेशन में आता है, जीएसटी भी आता है, EPFI, ESIC, बैंक अकाउंट्स तक प्राइवेट कंपनीज के केस में या कंपनीज के केस में आप इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट से ओपन कर सकते हैं। Second feature, have been allowed to accept deposit from the member without requirement of the circular creation of deposit assumption reserve maximum. अब क्या था, जब कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस हुआ था 1 अप्रैल 2014 से, उस टाइम प्रोविजन ये था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी लाइक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज सिर्फ अपने डायरेक्टर से तो लोन ले सकती है। उसमें भी एक कंडीशन ऐड ऑन कर दी कि प्राइवेट कंपनीज अपने डायरेक्टर से भी लोन उसी कंडीशन में ले पाएगी जब डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन देगा कि वो जो लोन दे रहा है वो उसका ओन फंड है, बोरोड फंड नहीं है। तो बहुत रिस्ट्रिक्शन आ रही थी कि प्राइवेट कंपनीज तो फंड वैसे ही पब्लिक से तो ले नहीं सकती है, तो प्राइवेट कंपनीज फंड ले कैसे कंप्लायंस करे। तो जो हमने अभी दो नोटिफिकेशन के ऊपर बात की थी, एक 5 जून 2015 की, एक 30 जून 2017 की, अगर इन दोनों नोटिफिकेशन को आप रीड करते हो तो इन दोनों नोटिफिकेशन का कंक्लूजन यही था कि प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर के अलावा अपने शेयर होल्डर से भी लोन ले सकती है। अब जो प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से जो लोन ले सकती है उसके लिए इन्होंने अलग अलग लिमिट्स दी है। इफ आफ्टर द डिस्कशन ऑफ कंप्लायंसेस अगर हमारे पास टाइम बचता है, ऑल आर पीपल आर विल बी इंटरेस्टेड, तो हम थोड़ा सा 10 मिनट के लिए डिपॉजिट्स पे भी डिस्कस कर लेंगे। थर्ड important feature, no need of filing of board resolution in MGT 14। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, प्राइवेट कंपनी को भी पहले स्टार्टिंग में ऐसा था कि जब नया एक्ट आया कि बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए MGT 14 फाइल करना है। अब बोर्ड रेजोल्यूशन तो कंपनी बहुत सारे फाइल करती, तो कितने MGT 14 फाइल करती, तो वो एग्जम्पशन भी प्राइवेट कंपनी को दे दी गई है कि बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए आपको MGT 14 नहीं करना। तो आज की डेट में प्राइवेट कंपनी को जो MGT 14 फॉर्म फाइल करना है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में फाइल करना पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर, लोन टू डायरेक्टर इज अलाउड आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ सर्टेन कंडीशन। सेक्शन 185 एक ऐसा सेक्शन है कंपनी एक्ट का जो बहुत रिस्ट्रिक्टिव सेक्शन है, जो सेक्शन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि आप लोन नहीं दे सकते डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स के रिलेटिव को, ऐसी एंटिटीज को जहां पे डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। बट उसमें भी प्राइवेट कंपनीज को एग्जम्पशन है, कुछ कंडीशंस है 185 सेक्शन में। अगर 185 सेक्शन की उन कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो प्राइवेट कंपनीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 185। These are the some small important features about the private company which we have discussed. अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन अबाउट द compliances of the private limited companies. Annual compliances, mandatorily annual compliances of the private limited companies. Now, जब हम annual compliances की बात करते हैं तो हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। और कंपनीज एक्ट में इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कंपनीज का होता है अप्रैल टू मार्च। इंडिया में जितनी भी कंपनीज होगी, ओनली 1% कंपनीज ऐसी होगी जिनका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च के अलावा कुछ और होगा। अदरवाइज 99% कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है। और अगर अप्रैल टू मार्च से हमें चेंज करना है फाइनेंशियल ईयर, तो उसके लिए एक कंडीशन है कंपनीज एक्ट में कि अगर किसी कंपनी को अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है फ्रॉम द अप्रैल टू मार्च, तो उन्हें रीजनल डायरेक्टर के पास एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। और जो एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर के पास फाइल करेंगे, उस एप्लीकेशन में 3 में से कोई एक ग्राउंड फुलफिल होना चाहिए। जिस इंडियन कंपनी का आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करवाना है, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट एटलीस्ट कोई एक कंपनी आउट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। उसी केस में आपको इंडियन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज करना अलाउड है। अदरवाइज अदर सिचुएशंस में, अदर कंडीशंस में आपको प्राइवेट कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज करना अलाउड ही नहीं है। तो अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो भी कंपनीज हैं उनका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है। तो इन अप्रैल टू मार्च के कंप्लायंसेस को मैंने क्वार्टरली डिवाइड किया है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने फर्स्ट क्वार्टर के लिए लिखा है अप्रैल टू जून।
अब जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर होता है, उस क्वार्टर में कंपनीज को क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, उस क्वार्टर में क्या क्या कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं हमारे कंप्लायंसेस। सबसे पहला कंप्लायंसेस है रिसिप्ट ऑफ एमबीपी 1 अंडर सेक्शन 184(1). Every director of the company in the first meeting of the board of directors in each financial year shall disclose his interest in other entities। मतलब every year डायरेक्टर्स के लिए, सभी डायरेक्टर्स के लिए, नॉट इवन अ सिंगल डायरेक्टर, एवरी ईयर सभी डायरेक्टर्स को ये मैंडेटरी है कि वो एमबीपी 1 सबमिट करे कंपनी के पास ऑन और बिफोर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है ईयर में, इसीलिए मैंने मेंशन किया है अप्रैल टू जून क्वार्टर कि अपनी कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अप्रैल टू जून में फॉल करती है। तो अप्रैल टू जून में जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग फॉल करेगी, उस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले डायरेक्टर्स को अपना एमबीपी 1 सबमिट करना पड़ेगा कंपनी के पास। एमबीपी 1 का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। एमबीपी 1 इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको आपको कहीं फाइल नहीं करना होता है, बट ये कंपनी के रिकॉर्ड में रहता है। Every director is required to submit with the company a fresh MBP 1 whenever there is change in the interest from the earlier। अब एक MBP 1 तो मैंडेटरी है, आपको फर्स्ट मीटिंग से पहले देना ही देना है। उसके अलावा अगर कभी भी आपके स्टेटस में चेंज आता है, आपके इंटरेस्ट में चेंज आता है, तो डायरेक्टर को एक और MBP 1 बार बार भी देना पड़ेगा जब जब चेंज आएगा। अब जो ये MBP 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज MBP 1 में डायरेक्टर क्या क्या डिटेल देता है। MBP 1 में डायरेक्टर मेंशन करता है वो कहाँ कहाँ इंटरेस्टेड है, उसकी कहाँ कहाँ डायरेक्टरशिप है, उसकी कहाँ कहाँ शेयर होल्डिंग्स है, उसकी कहाँ कहाँ पार्टनरशिप फॉर्म्स है, कितनी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स है, अपना पूरी डिटेल्स डायरेक्टर देता है। तो MBP 1 के थ्रू डायरेक्टर्स ने हमें बताएगा कि वो कहाँ कहाँ डायरेक्टर है। तो जनरली हमें एमसी की साइड से वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड, दैट पर्सन विल क्लियर कि उस पर्सन की कहाँ कहाँ शेयर होल्डिंग है, जो हमें उसके अलावा कोई नहीं बता सकता है। ऐसी कौन सी पार्टनरशिप फॉर्म्स है जिसमें वो पार्टनर है, ऐसी कौन सी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स है जिसमें वो प्रोप्राइटर है, वो सभी डिटेल्स इस MBP 1 में वो कंपनी को देगा। इसके साथ ही वो देगा अपनी लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स की लिस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द रिलेटिव्स का भी कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है। तो अब जो ये मेरा डायरेक्टर का खुद का इंटरेस्ट, लिस्ट ऑफ रिलेटिव का इंटरेस्ट, ये सारा आपको हेल्प करेगा एनालाइज करने में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर कंपनी स्टैंडर्ड AS 18। AS 18 भी आपको हेल्प करेगा डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट स्केच करने में, उन इंटरेस्टेड एंटिटी से कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन किया है या नहीं किया है। तो MBP 1 is a very important document from the point of view of the audit also। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से MBP 1 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सेकंड आता है फर्स्ट कंप्लायंस वाज द MBP 1, सेकंड कंप्लायंस इज DIR 8 अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 read with section 143(3)(g). Every director of the company in each financial year will submit with the company disclosure of non-disqualification। डिस्क्वालिफिकेशन होती है कंपनीज एक्ट में सेक्शन 164(2) के अकॉर्डिंग। सेक्शन 164 में ग्राउंड्स दिए हैं कि किस किस ग्राउंड पे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होगा। उनमें से एक ग्राउंड है कि अगर डायरेक्टर किसी ऐसी कंपनी में पर्सन डायरेक्टर है जिसने लास्ट 3 ईयर से अपनी एनुअल फाइलिंग्स नहीं की है, मींस लास्ट 3 ईयर से उस पर्सन ने अपनी एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के फाइल नहीं किए हैं, उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाता है एज पर लॉ। तो अगर पर्सन डिस्क्वालीफाई है तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता किसी भी कंपनी में एज अ डायरेक्टर। अगर मैं एक पर्सन डायरेक्टर हूँ, मैं 2 कंपनीज का डायरेक्टर हूँ, आप उनमें से एक कंपनी के ऑडिटर हैं, मैं दूसरी कंपनी की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ, तो अनटिल अनलेस मैं आपको डिस्क्लोजर नहीं दूंगा, अपना डिक्लेरेशन नहीं दूंगा, आपको कैसा पता चलेगा मैं डिस्क्वालीफाई हूँ या नहीं हूँ। और एज पर सेक्शन 143(3)(g
इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू चेक वेदर अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड और नॉट एंड टू गिव डिस्क्लोजर ऑफ द सेम इन द ऑडिटर रिपोर्ट इटसेल्फ। दिस इज द मंथ ऑफ अगस्त। अब अक्टूबर मंथ, सितंबर मंथ में आप सभी लोग बहुत सारी ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिपेयर करने वाले हैं। तो सेक्शन 143(3) जी के अकॉर्डिंग आपको ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है कि कौन पर्सन डिस्क्वालिफाइड है, कौन पर्सन डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड नहीं है, कंटिन्यू कर रहा है। तो उसके लिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ DIR 8, जो पर्सन DIR 8 देगा वो ये डिक्लेयर कर रहा है कि आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, आई एम अलाउड टू कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर। तो इस DIR 8 के बिहाफ पे आप अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में भी डिस्क्लोजर दे सकते हैं। First two mandatory compliances for the company: receipt of the MVP1 and receipt of the DIR 8। तो अब ये MVP1 और DIR 8 कंपनी के लिए तो कंप्लायंस करना मैंडेटरी है ही है। इसके साथ हमने ये भी समझ लिया है कि अब ये ऑडिटर्स के लिए भी कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। Compliance number 3, half yearly return under section 405 E form MSME 1। अब जैसा हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, प्राइवेट कंपनी के केस में क्या था, चाहे वो 1956 एक्ट था या 2013 एक्ट, हमने हमेशा यही बोला था प्राइवेट कंपनी को साल के लास्ट में 2 फॉर्म फाइल करने होते हैं। अगर कोई फॉर्म बड़ा भी था तो हम यही बोलते थे कि ये फॉर्म भी फाइल करना पड़ेगा। बट प्राइवेट कंपनीज के केस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्राइवेट कंपनीज को कोई ईयरली फॉर्म फाइल करना पड़ रहा है, सॉरी हाफ ईयरली फॉर्म फाइल करना पड़ रहा है। तो लास्ट ईयर इन 2019 सेक्शन 405 में मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया ये MSME 1 फॉर्म। MSME का पर्पस क्या है? कंपनी हैव टू फाइल दिस रिटर्न हाफ ईयरली, प्लीज फोकस, हाफ ईयरली, in respect of pending payment to the MSME vendor at the end of half year। जो हमारा अक्टूबर से मार्च का जो हाफ ईयर है उसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल, इसीलिए हमने मेंशन किया क्वार्टर अप्रैल टू जून में कि क्वार्टरली अप्रैल टू जून में ये वाला कंप्लायंस हमारा फॉल करेगा। तो एक अक्टूबर टू मार्च हो गया, सेकंड हो गया अप्रैल टू सितंबर। अब जो अप्रैल टू सितंबर हाफ ईयर है इसके लिए हमें फाइल करना पड़ेगा 30 सितंबर तक। तो जो MSME 1 फॉर्म है ये साल में 2 बार फाइल होगा विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ हाफ ईयर। हमारा फालतू पड़ा है, विद इन 30 डेज ऑफ एंड ऑफ हाफ ईयर में ये फाइल होता है। तो जो हाफ ईयर अक्टूबर टू मार्च है उसका फाइनेंशियल, उसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल। जो हाफ ईयर अप्रैल टू सितंबर है उसकी ड्यू डेट है 30 अक्टूबर। तो अभी जो हमारा हाफ ईयर 31 मार्च 2020 क्लोज हुआ उसकी ड्यू डेट थी 30 अप्रैल। बट मिनिस्ट्री ने ड्यू टू कोविड, ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, इसकी ड्यू डेट, सभी फॉर्म्स की ड्यू डेट इंक्रीज करके 30 सितंबर कर दी है। तो नाउ वी आर हैविंग द 1 मंथ टू कंप्लाई विद दिस प्रोविजंस। अब जब बात करते हैं MSME 1 फॉर्म फाइल करने की, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। MSME 1 फॉर्म आपके क्लाइंट को फाइल करना है या नहीं करना, ये चेक करने के लिए आपको 3 चेक पॉइंट यूज करने पड़ेंगे। ये ऊपर MSME 1 की रिक्वायरमेंट आती है या नहीं आती है, 3 चेक पॉइंट। पहला चेक करो कि कोई MSME वेंडर भी है या नहीं है, कंपनी का कोई MSME वेंडर है या नहीं है। सेकंड, कोई MSME वेंडर तो है बट एट द एंड ऑफ हाफ ईयर क्या उसकी कोई पेमेंट पेंडिंग थी या नहीं। पहला पॉइंट, कोई MSME वेंडर ही नहीं है तो ये फॉर्म फाइल ही नहीं करना। बट MSME वेंडर है, बट सेकंड पॉइंट में आता है MSME वेंडर तो है बट उसकी कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। तो इफ एट द एंड ऑफ हाफ ईयर कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है तो भी हमें ये फॉर्म नहीं फाइल करना। बट मैं कहता हूँ MSME वेंडर भी है, एट द एंड ऑफ हाफ ईयर पेमेंट भी पेंडिंग है। तो अब तीसरा चेक लगाना है, क्या वो पेमेंट 45 डेज से ज्यादा के लिए पेंडिंग है या 45 डेज से कम के लिए पेंडिंग है। अगर वो पेमेंट 45 डेज से ज्यादा के लिए पेंडिंग है तो आपको कोई इशू नहीं, 45 डेज से कम के लिए पेंडिंग है तो आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 45 डेज से ज्यादा के लिए पेंडिंग है
तो आपको डेफिनेटली फॉर्म फाइल करना ही पड़ेगा अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस फॉर्म। अब एमएसएमई 1 फॉर्म आपके ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम से क्वेश्चन माइंड में आएगा कि ठीक है, कंपनी को तो कंप्लायंस करना है, कंपनी को एमएसएमई 1 फाइल करना है, बट अब ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएसएमई 1 फॉर्म कैसे इंपॉर्टेंट है? नाउ आई टेल यू कि ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट पास हुआ था 2006 में। 2006 में एमएसएमई एक्ट पास हुआ। ऑलमोस्ट 14 ईयर हो गए हैं एमएसएमई एक्ट को पास हुआ। तो 2006 में जब जब 2006 में एमएसएमई एक्ट पास हुआ था, तो उस टाइम एक कंडीशन थी कि सेक्शन 22 में कि ऑडिटर्स को अपनी बैलेंस शीट बनाते वक्त बैलेंस शीट में एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि क्या कंपनी का कोई एमएसएमई वेंडर है या नहीं है, उसकी पेमेंट 45 डेज में हुई या नहीं हुई, उसकी पेमेंट 45 डेज में नहीं हुई तो क्या इंटरेस्ट पे हुआ या नहीं हुआ, इंटरेस्ट पे हुआ तो क्या नहीं हुआ तो क्या कॉन्टिजेंसीज उसकी मेंशन की है, हुआ है तो क्या टीडीएस कट किया या नहीं किया। एक बहुत बड़ा फुल फ्लैश डिस्क्लोजर्स ऑडिटर को बैलेंस शीट में देना पड़ता है। बट क्या हो रहा था लास्ट 14 ईयर से क्या हो रहा था, whatever balance sheet I have checked, whatever you people are preparing the balance sheet, last 14-15 years से क्या हो रहा था, जनरली आप कोई भी बैलेंस शीट उठा के देखिए इंडियन कंपनीज की, 90% बैलेंस शीट में एक सिंपल लाइन लिखी होती थी कि कंपनी का कोई एमएसएमई वेंडर नहीं है, कोई एमएसएमई डिफॉल्ट नहीं है। ये एक दो फिक्स लाइन थी जो सभी प्रोफेशनल्स आंख बंद करके इस लाइन को यूज करते थे, और रीजन भी ये था कि मिनिस्ट्री के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था चेक करने के लिए कि क्या ऑडिटर ने मतलब कि कोई एमएसएमई का डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। बट जब से 2019 में ये फॉर्म लॉन्च हो गया है, ये फॉर्म इंट्रोड्यूस हो गया है, अब क्या हो गया, ये फॉर्म फाइल ही उस केस में करना है जहां एमएसएमई वेंडर है, जहां एमएसएमई वेंडर की पेमेंट पेंडिंग है और पेमेंट 45 डेज से ज्यादा पेंडिंग है। तो अगर मैं बोलता हूं कि आपके किसी क्लाइंट ने एमएसएमई 1 फॉर्म फाइल कर दिया, मिनिस्ट्री के पास एमएसएमई 1 फॉर्म फाइल कर दिया, तो वो क्लाइंट इटसेल्फ डिक्लेयर कर चुका है कि उसने किसी एमएसएमई वेंडर की पेमेंट में 45 डेज से ज्यादा का डिफॉल्ट किया है। जब क्लाइंट खुद ही डिक्लेयर कर चुका है कि 45 डेज से ज्यादा का मैंने डिफॉल्ट किया है, 45 डेज से बाद मैंने पेमेंट की है, तो आप लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है एज ऑडिटर, तो आपको स्पेसिफिकली बैलेंस शीट में मेंशन करना ही पड़ेगा। अब तो हम ऐसा लिख ही नहीं सकते कि कोई एमएसएमई वेंडर नहीं है या उसकी पेमेंट टाइम पे हो गई थी। तो MSME 1 फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडिट। आप लोग इस साल की अब जो ऑडिट सितंबर और अगस्त मंथ थी, इज द मंथ फॉर द ऑडिट, अभी आप लोग ऑडिट कर रहे होंगे, तो इट्स अ सिंपल सजेशन फ्रॉम माय साइड कि जब भी आप ऑडिट कर रहे हैं तो MSME 1 फॉर्म कंपनी का डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि अगर MSME 1 फॉर्म कंपनी ने फाइल किया है तो आपको बहुत सारी चीजें अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करनी पड़ेगी। Fourth compliance of the first quarter is E-Form DPT3 under section 73. It is also a very important form. अभी हम normally पढ़ लेते हैं। Company is required to file this form every year on or before 30th June in respect of return of deposit and particular note considered as deposit as on 31st March. पहली चीज, ये फॉर्म एवरी ईयर फाइल होगा। फाइल करने के लिए ड्यू डेट क्या है, 30 जून। 30 जून ऑलरेडी निकल चुकी है इस साल, बट इस साल हमें पता है कि ड्यू टू कोविड मिनिस्ट्री ने काफी सारी रिलैक्सेशन दी, तो उसमें एक रिलैक्सेशन ये भी है कि इस साल का जो DPT3 आप 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल फीस। तो जो DPT3 की ड्यू डेट 30 जून होती है, इस साल हम उसे 30 सितंबर तक ओनली फॉर दिस ईयर फाइल कर सकते हैं। अब क्या हुआ, पहले तो ऐसा कोई DPT3 फॉर्म पता नहीं था, अब ये नया फॉर्म आ गया और इसको एवरी ईयर फाइल करना है 30 जून तक। और इसमें डिटेल्स क्या देनी है कि 31 मार्च को कंपनी का क्या लोन आउटस्टैंडिंग था, 31 मार्च को कस्टमर का क्या एडवांस था। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल का क्वेश्चन आता है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोफेशनल के क्वेश्चन है
कि हमारी बैलेंस शीट तो फाइनलाइज होती है इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। तो हम 30 जून को कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं कि कितने लोन्स थे 31 मार्च को, कितने एडवांसेस थे। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि क्या हम प्रोविजनल फिगर्स मेंशन कर दे डीपीटी 3 में और जब बैलेंस शीट बनेगी तो फाइनल फिगर मेंशन कर दे। तो आई विल से दिस इज कंप्लीटली अ रॉन्ग अप्रोच। डीपीटी 3 में आप प्रोविजनल फिगर मेंशन नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अमाउंट आपने डीपीटी 3 में मेंशन किया है वो फिगर, वो सेम अमाउंट आपके बैलेंस शीट में भी मेंशन किया होना चाहिए। तो इट इज नथिंग लाइक कि डीपीटी में आप कुछ और लिख रहे हैं और बैलेंस शीट में आप कुछ और मेंशन कर रहे हैं। तो जो चीज डीपीटी में लिखी होगी, जो फिगर डीपीटी में लिखी होगी, वो सेम फिगर आपको बैलेंस शीट में भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कैसे हमको कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि पीछे तो मिनिस्ट्री बता सकती है कि उन्होंने 30 जून ड्यू डेट क्यों रखी है, बट अब जब ड्यू डेट 30 जून रख दी है तो एज अ प्रोफेशनल यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपको तो 30 जून तक फॉर्म फाइल करना ही पड़ेगा और 30 जून तक फॉर्म फाइल करोगे तो आपको 30 जून तक सब डाटा रिलेटिंग टू द लोन, डाटा रिलेटिंग टू द एडवांस फाइनलाइज करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इन दैट। अगर इस डीपीटी 3 पे किसी का कोई पॉइंट है तो क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करो, बिकॉज आई हैव टेकन लोट्स ऑफ वेबिनार ऑन दिस टॉपिक। डीपीटी 3 पे थाउजेंड ऑफ कंफ्यूजन्स है मेंबर्स के माइंड में। तो अगर आप लोगों के माइंड में भी कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मेंशन करें। एक और क्वेश्चन आता है डीपीटी 3 से रिलेटेड, जो जनरली हर प्रोफेशनल का चार्टर्ड अकाउंटेंट का आता है। डीपीटी 3 में ऑडिटर्स रिपोर्ट अटैच करना मैंडेटरी है क्या? अब यहाँ पे मैं बोलूंगा डीपीटी 3 दो पार्ट में फाइल होता है। एक होता है डिपॉजिट्स के लिए, एक होता है पर्टिकुलर नोट कंसीडर एज डिपॉजिट के लिए। जैसा हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकती है, तो प्राइवेट कंपनी के केस में तो हमेशा पर्टिकुलर नोट कंसीडर एज डिपॉजिट का केस ही फाइल होगा। इन केस प्राइवेट कंपनी अगर डिपॉजिट पे क्लिक करके फॉर्म फाइल करती है तो वो तो इटसेल्फ इज शोइंग कि प्राइवेट कंपनी ने नॉन कंप्लायंसेस किए हैं, प्राइवेट कंपनी में नॉन कंप्लायंस है। बिकॉज प्राइवेट कंपनी जब डिपॉजिट ले ही नहीं सकती है तो फॉर्म में डिपॉजिट सिलेक्ट भी कैसे कर सकती है। तो जब प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकती है, फॉर्म में डिपॉजिट नहीं सिलेक्ट कर सकती है, तो प्राइवेट कंपनी के केस में 99% तो आपको पर्टिकुलर नोट कंसीडर एज डिपॉजिट पे ही क्लिक करना पड़ेगा। और जब पर्टिकुलर नोट कंसीडर एज डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी पेनल्टीज पे करने तो आपको कोई भी ऑडिटर्स रिपोर्ट अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑडिटर्स रिपोर्ट अटैच करने की रिक्वायरमेंट सिर्फ उसी केस में आएगी जिस केस में आपने डिपॉजिट्स पे क्लिक किया है इंस्टेड ऑफ द पर्टिकुलर नोट कंसीडर एज डिपॉजिट। So these are the 4 compliances which is required to done by every private company every year in the quarter April to June। पहला था MBQ1, दूसरा DIR 8, तीसरा हाफ ईयरली रिटर्न, फोर्थ ईयरली रिटर्न। तो ये ऐसे compliances हैं जो एवरी कंपनी को एवरी ईयर में करने पड़ते हैं। Hope we are clear with all these we can say all these 4 compliances। Let's move to the quarter July to September। अब जुलाई टू सितंबर जो आज हमारा टाइम चल रहा है, जुलाई टू सितंबर वो मंथ है जब कंपनीज की बैलेंस शीट रेडी होती है, फाइनेंशियल रेडी होते हैं। तो इस क्वार्टर में अब क्या क्या कंप्लायंसेस है? सबसे पहले जैसा मैंने बोला सेक्शन 134 अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड इन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जुलाई टू सितंबर मंथ का एक जो कंप्लायंसेस है, सबसे पहला वो तो ये है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर। अब इस साल एक इशू आ रहा है कि कंपनीज बोल रही है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कैसे करवाएं। डायरेक्टर्स एक प्लेस पे नहीं है, कोरियर सर्विसेज प्रॉपर्ली चल नहीं रही है, तो कैसे साइन करें? तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। और आई होप कि जो हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट विल हेल्पफुल टू एवरीवन कि इस साल हमें फाइनेंशियल्स में क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक चीज मैं डेफिनेटली बोलूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एज अ ऑडिटर आप साइन करें, एक चीज बहुत ध्यान रखना
Many time I have seen कि ये मिस्टेक हो जाती है अनइंटेंशनली कि प्राइवेट कंपनी है, 2 डायरेक्टर है, जिस डेट पे हम बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं ना, उस डेट पे एक डायरेक्टर इंडिया में ही नहीं था और मीटिंग हम दिखा देते हैं इंडिया में और साइन कर देते हैं उस डेट में। तो इट इज अ रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू एवरी प्रोफेशनल हु इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेबिनार कि जब आप बैलेंस शीट साइन करें उस पर जो भी डेट मेंशन करें, प्लीज मेक श्योर कि उस डेट पे वो पर्सन उस सिटी में उस कंट्री में अवेलेबल है भी या नहीं है। Compliance number 6, Director's Report. Director report shall be prepared by mentioning all the information required by the company under section 134, read with relevant rules and provision. अब section 134 में director's report prepare होती है। director's report भी 2 तरह की होती है। अगर आपकी कंपनी स्मॉल है और ओपीसी है, उस केस में आपकी डायरेक्टर रिपोर्ट छोटी बनती है, उस केस में आपको कम डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। बट अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है बट प्राइवेट कंपनी है, उस केस में आपके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो पहली चीज, जब भी आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाएं, मेक श्योर कि आपने चेक किया है कि आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है या नॉन स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी है तो आपको शॉर्ट एंड सिंपल डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी, नॉन स्मॉल कंपनी है तो काफी सारे डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे। As mentioned in the Act, director report should be signed by the chairman of the company or at least by the 2 directors. Out of them, one should be MD if there is any. So इस क्वार्टर का पहला compliance क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। सेकंड होता है ऑडिटर रिपोर्ट अडॉप्ट करना। थर्ड होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रिपेयर करना। अब डिस्कस करते हैं compliance number 7, holding of annual general meeting। जुलाई से सितंबर जो क्वार्टर है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क जो हमारा था फाइनेंशियल, उसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट टास्क होता है होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या स्मॉल कंपनी हो, उस कंपनी को एवरी ईयर इट इज मैंडेटरी कि वो एक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करेगी ही करेगी। एज मेंशन्ड इन द स्क्रीन, every company shall in each financial year hold in addition to any other meeting a general meeting of its member. It shall be held within period of 6 months from the closing of financial year. As we discussed in starting, India में 99% कंपनीज के फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो अगर 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ मतलब 30 सितंबर तक कंपनी को अपनी एजीएम होल्ड करनी ही पड़ेगी। तो एजीएम होल्ड करनी पड़ेगी टिल 30 सितंबर। तो ये कंप्लायंस हमारा जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में फॉल करेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोविजन है, क्वेश्चन है, तो हम 5-7 मिनट उसको डिस्कस 5 to 7 मिनट डिस्कस करेंगे। कंपनीज एक्ट में जब बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं ना, सेक्शन 173 रूल 3 ऑफ द मीटिंग्स एंड बोर्ड पावर रूल्स, 173 रूल 3 में स्पेसिफिक लिखा है कि कंपनीज कैन होल्ड बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर एक कंपनी फिजिकल बोर्ड मीटिंग नहीं करना चाहती है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग कर सकती है, ये स्पेसिफिकली एक्ट में लिखा है। बट एक्ट में कंपनीज एक्ट चाहे 1956 उठा लो या कंपनीज एक्ट 2013 उठा लो, एक्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी अलाउड नहीं किया कि एक कंपनी अपने जनरल मीटिंग, चाहे वो ईजीएम हो चाहे वो एजीएम हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो या एनुअल जनरल मीटिंग हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि प्राइवेट कंपनीज अपनी एजीएम या कोई भी जनरल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनरल मीटिंग करना कभी भी अलाउड नहीं है अंडर कंपनीज एक्ट। बट अभी रिसेंटली कोविड-19 के कारण मार्च और अप्रैल मंथ में काफी सारी रिलैक्सेशन दी मिनिस्ट्री ने। उसमें से एक रिलैक्सेशन ये थी कि दिस ईयर 2020 till 31st December 2020, 31 दिसंबर 2020 तक अगर कोई कंपनी अपनी एजीएम होल्ड करना चाहती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थ्रू वो कर सकती है। They have allowed this. डेफिनेटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर मैं अपनी एजीएम करता हूं तो मुझे कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, कुछ भी नई चीज करते तो कंप्लायंसेस तो करने पड़ेंगे, दैट इज नॉट अ टास्क। और मेजर थिंग कि मिनिस्ट्री ने अलाउ किया कि 30th
31 दिसंबर 2020 तक आप एजीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हो। फर्स्ट सिनेरियो। नाउ सेकंड सिनेरियो आता है एजीएम होल्ड करने के लिए, पहले कंप्लायंस नंबर 8 पढ़ लेते हैं। एजीएम होल्ड करने के लिए कंपनी को एक नोटिस ऑफ एजीएम सर्कुलेट करना पड़ता है। नोटिस ऑफ एजीएम किस किस को जाता है? कंप्लायंस नंबर 9 में नोटिस ऑफ एजीएम डायरेक्टर्स को जाता है, मेंबर्स को जाता है, ऑडिटर्स को। ये तीन तो मैंडेटरी है, और डिवेंचर ट्रस्टी होता है तो उसको भी मैंडेटरी है, पर डायरेक्टर, मेंबर और ऑडिटर तो हर कंपनी में होते हैं। तो पहली चीज तो आप लोग यही इंश्योर करना शुरू कर दो कि आपके जितने भी क्लाइंट कंपनी है, क्या उनका एजीएम का नोटिस आपको आता है या नहीं आता है। अगर उनकी एजीएम का नोटिस आपको नहीं आता है तो ये उनके पार्ट में नॉन कंप्लायंस है। Compliance number 10, circulation of financial statement and other document. As per section 136, every company will send to the members of the company approved financial statement, director's report, auditor report at least 21 days before the AGM. और AGM छोटे नोटिस पे किया है तो जब नोटिस जा रहा है उसके साथ। तो कंप्लायंस नंबर 10 बोलता है जब भी एजीएम का नोटिस जाएगा उस नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच होगा, ऑडिटर रिपोर्ट अटैच होगी, डायरेक्टर रिपोर्ट अटैच होगी और सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, मतलब पूरी एनुअल रिपोर्ट जाएगी। अब सिचुएशन क्या है, कोविड-19 के कारण काफी सारी कंपनीज अपनी एजीएम, अपने फाइनेंशियल्स 30 सितंबर तक रेडी नहीं कर पाएगी। देयर आर द लॉट ऑफ कंपनीज फॉर होम इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि 30 सितंबर तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर लें। तब उन कंपनी के केस में क्या होगा कि अगर 30 सितंबर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं होते हैं तो वो 30 सितंबर तक एजीएम नहीं कर पाएगी। 30 सितंबर के बाद एजीएम करेगी तो उन पे पेनल्टीज लग जाएगी, डिफॉल्ट माना जाएगा सेक्शन 96 का, और सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग पेनल्टीज लग जाएगी। अब ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये था कि मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन लेके आती, जैसे उन्होंने फॉर्म फाइलिंग की एक्सटेंशन दी है वैसे ही एजीएम कंडक्ट करने के लिए एक्सटेंशन दे देती। एजीएम एक्सटेंशन के लिए आईसीएसआई ने, आईसीएआई ने रिप्रेजेंटेशंस भी की मिनिस्ट्री में, पर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया लास्ट वीक। उस नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि हम एजीएम एक्सटेंशन ओपन एंडेड नहीं कर रहे हैं, बट अगर किसी को एजीएम एक्सटेंड करवानी है, किसी कंपनी के पास रीजन है एजीएम को एक्सटेंड करवाने के लिए, तो वो पर्सन कंपनी एक एप्लीकेशन विद कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 96 जीएनएल 1 में अटैच करके आरओसी को फाइल करे। आरओसी उसे एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके कि आरओसी को फील होगा, आरओसी कंसीडर कि यस इसकी एजीएम एक्सटेंड होनी चाहिए तो आरओसी एजीएम एक्सटेंड करेगा, अदरवाइज आरओसी एजीएम एक्सटेंड नहीं करेंगे। Even I have written a full-fledged article on this topic, extension of AGM। तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मेंशन की है कि कैसे एजीएम एक्सटेंड होगी। उसमें मैंने ड्राफ्ट्स भी आर्टिकल में मेंशन लगाए हैं कि एप्लीकेशन का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो जो मेरा आर्टिकल है इस पे ड्राफ्ट है, मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है, मेरी वेबसाइट पे वो अवेलेबल रहेगा। तो इस साल अब आपके दो ऑप्शन है, या तो जल्दी से बैलेंस शीट बनाओ और 30 सितंबर को एजीएम अपनी कर लो। 30 सितंबर तक अगर एजीएम नहीं कर पाते तो फिर 30 सितंबर से पहले पहले एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दो, और अप्लाई करते वक्त मेक श्योर कि आपको एक्सटेंशन मिल जाए। Hope no one have any doubt of this AGM of extension now, because last 1 week से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल के क्वेश्चन आ रहे हैं कि एजीएम में कोई एक्सटेंशन हुआ या नहीं हुआ, एजीएम का एक्सटेंशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो एजीएम के एक्सटेंड करने के लिए आपको जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा या उसके लिए जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन बनेगी, उस ड्राफ्ट एप्लीकेशन का और उसका फॉर्मेट एंड प्रोसेस मेरे ब्लॉग पे पब्लिश्ड है। तो अगर आपको रीड करना है आपको प्रॉपर्ली तो आप वहां से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या चीज है कि एजीएम से रिलेटेड हमारे प्रोविजन क्लियर है
एजीएम 30 सितंबर तक होनी चाहिए। एजीएम 30 सितंबर तक नहीं होती तो डायरेक्टर्स आर लायबल फॉर द पेनल्टी, कंपनी इज लायबल फॉर द पेनल्टी। एजीएम का नोटिस मैंडेटरी है कि आप डायरेक्टर्स को भेजें, शेयर होल्डर्स को भेजें, ऑडिटर को, इन तीनों को एजीएम का नोटिस भेजना मैंडेटरी है। एज ए ऑडिटर अगर आप लोगों को एजीएम का नोटिस रिसीव नहीं होता तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कंपनीज को बोले कि वो कंप्लायंस करें और आपको नोटिस भेजे। These are the 10 mandatory compliances for a private limited companies. Compliance number 11. This is also annual form DIR3 KYC. All the directors of the company shall file this form on or before 30th September with ROC. Generally क्या था, ये फॉर्म लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ। इस फॉर्म के आने से पहले ना केवाईसी की जब भी बात होती थी तो केवाईसी के नाम से हमें बैंक्स याद आते थे कि बैंक्स में केवाईसी करनी होती है, पर इस फॉर्म के आने के बाद हमें केवाईसी डायरेक्टर्स की भी करनी पड़ती है। कंपनी को डायरेक्टर्स की भी केवाईसी करनी पड़ती है। डायरेक्टर के केस में क्या है, डायरेक्टर्स के केस में एवरी डायरेक्टर, कंपनी के एवरी डायरेक्टर्स को अपनी केवाईसी फाइल करनी पड़ती है मिनिस्ट्री के पास। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी is required to file their KYC with the ministry और इसकी ड्यू डेट होती है 30 सितंबर। DIR3 KYC के भी दो फॉर्म होते हैं, एक होता है वेब बेस्ड फॉर्म बोलते हैं, एक बोलते हैं ई फॉर्म। अगर डायरेक्टर ने जो लास्ट ईयर DIR3 KYC फाइल किया था उसके पर्टिकुलर्स में कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, तो आप वेब बेस्ड फॉर्म फाइल करो। बट उसके पर्टिकुलर में अगर चेंज है तो आपको ई फॉर्म DIR3 KYC फाइल करना पड़ता है। So these are the first 11 mandatory compliances। अभी तक हमने डिस्कस किया, आप लोगों ने भी देखा, these are compliances are the mandatory compliances। इसमें कहीं भी कोई इशू नहीं है। अगर किसी के इन 11 compliances पे अभी तक के कोई क्वेरी है, any query, please feel free to ask the queries। डिपॉजिट्स की डेफिनेशंस बता देंगे दोबारा एक बार? सॉरी सर, डिपॉजिट्स की डेफिनेशन। डिपॉजिट्स की डेफिनेशन, ठीक है सर, मैं 5 मिनट ले लेता हूँ डिपॉजिट की डेफिनेशन समझने के लिए। डिपॉजिट की डेफिनेशन के लिए मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, तो वो बहुत क्लैरिटी से हम डिस्कस कर सकते हैं उस स्क्रीन शेयर करने के बाद। क्योंकि डिपॉजिट अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि एवरी टाइम व्हेनेवर आई एम डिस्कसिंग विद एनी प्रोफेशनल, बहुत सारे डाउट रहते हैं डिपॉजिट को लेके। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये मैंने मिनिस्ट्री की साइट से ही ई बुक ओपन की हुई है। मिनिस्ट्री की साइट पे ही मैंने ई बुक ओपन की है। यहाँ पे आप देखेंगे ई बुक में डिपॉजिट की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं इसको ब्रीफ करता हूं। डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म। इस डेफिनेशन को अगर जनरल सेंस में पढ़े, ईच एंड एवरी लोन इज द डिपॉजिट फॉर द कंपनी। हर तरह का लोन कंपनी के लिए डिपॉजिट है। बट यहाँ पे बाद में इन्होंने मेंशन कर दिया, बट डज नॉट इंक्लूड। दिस इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट डज नॉट इंक्लूड, बिकॉज एज पर दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सभी लोन्स डिपॉजिट है। बट जब हम कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस की बात करते हैं तो ये जो बट डज नॉट इंक्लूड की लिस्ट है ना, इनको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। जैसे इस लिस्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है लोन फ्रॉम डायरेक्टर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। इस लिस्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है लोन फ्रॉम एनी अदर कंपनी, तो अगर किसी दूसरी कंपनी से लोन मिलता है हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। इस लिस्ट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, फॉरेन बैंक, फॉरेन इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, उनसे लोन नहीं मानेंगे। बैंक से लोन डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स दिए हैं, लाइक एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अनदर कंपनी। तो इस डेफिनेशन, जब डिपॉजिट को हम जनरली डिस्कस करते हैं, लीगल पॉइंट को छोड़ देते हैं, हर तरह का लोन डिपॉजिट है, सिर्फ ये नीचे मेंशन लिस्ट को छोड़ के। इस लिस्ट में जहां जहां से लिखा हुआ है लोन लेना, वहां से तो लेते हैं तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। उसके अलावा किसी से भी लो डिपॉजिट ही माना जाएगा। अब मैं बात करता हूं प्राइवेट कंपनीज की, क्योंकि हमारे पास मोस्टली प्राइवेट कंपनीज है। प्राइवेट कंपनीज इन जो नीचे लिस्ट मेंशन है, इसके अलावा किसी से लोन ले नहीं सकती है,
क्योंकि प्राइवेट कंपनी को डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं है। प्राइवेट कंपनी को डिपॉजिट जब अलाउड नहीं है तो नीचे चीजें जो मेंशन की है सिर्फ यही ऐसी चीजें जो डिपॉजिट नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी जो ये पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट सी में जो पॉइंट 1 से लेके यहाँ तक जो पॉइंट 17 तक पॉइंट्स लिखे हुए हैं 18, इनसे किसी से भी लेती है तो प्राइवेट कंपनी के लिए वो नॉन डिपॉजिट ही माना जाएगा। तो बस दीज आर द सोर्सेज। अब जब हम डीपीटी 3 फाइल करते हैं, आपने देखा होगा 2 रिमोट बटन होते हैं। एक बोलता है डिपॉजिट पे है तो डिपॉजिट पे क्लिक करो, एक बोलता है पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट है तो उस पे क्लिक करो। अगर आपकी कंपनी ने नीचे मेंशन लिस्ट के अलावा किसी से लोन या एडवांस नहीं लिया है तो आप पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट पे क्लिक करोगे क्योंकि आपका डिपॉजिट नहीं बना है। बट आपकी कंपनी ने इनके अलावा किसी से लोन लिया है तो आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना पड़ेगा। Advances from customer is also deposits. हाँ, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर। अब देखो मैं इसी में सर्च करके दिखाता हूँ। See here this point number 12. Any amount received in course for the purpose of business of the company. Number 8. An advance for the supply of goods on provision accepted in manner whatever provided is appropriate against the supply of goods or service within a period of 365 days from the acceptance of advance. ये सेक्शन बोलता है आपने गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट में कुछ एडवांस लिया था, 365 दिन से अंदर अंदर गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर देते हो, तब तो ये देखो ये एक्सक्लूडिंग लिस्ट में लिखा हुआ है, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। बस 365 दिन अगर क्रॉस कर देते हो तो फिर वो डिपॉजिट माना जाएगा। थैंक यू सर। तो ये लिस्ट बहुत क्लियर लिस्ट है। इस क्लियर लिस्ट को मतलब अगर जब भी मैं डिपॉजिट की बात करता हूँ, मैंने थ्रू आउट द इंडिया ऑलमोस्ट 50 to 60 सेशंस लिए हैं डिपॉजिट्स पे। सबसे बड़ा इशू अभी तक ये आता है कि हम डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सिंपल डिफरेंशिएट है, जो चीज डेफिनेशन की बट डज नॉट इंक्लूड में लिखी है वो नॉन डिपॉजिट है, उसके अलावा सब कुछ डिपॉजिट है। इवन सर डिपॉजिट के सेक्शन पे प्राइवेट कंपनी की अगर बात करते हैं डिपॉजिट नॉन डिपॉजिट, तो मैंने कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनाई है, 4-5 वीडियोस कि क्या डिपॉजिट होता है क्या नहीं होता, प्राइवेट कंपनी फाइल करते वक्त क्या ध्यान रखेगी। तो अगर मेंबर्स वांट तो आप लोग वो वीडियोस भी जब भी फ्री टाइम में देख सकते हैं। तो इट विल आल्सो हेल्प यू टू क्लियर कि क्या डिपॉजिट है क्या नहीं है। होप सर क्लियर है। डिपॉजिट या कोई क्वेरी है तो प्लीज फ्रैंकली पूछ सकते हैं। नहीं सर, थैंक यू सर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 11 compliances we have already discussed. हम ऑलरेडी 11 compliances डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है compliance नंबर 12 जो फॉल करता है अक्टूबर टू दिसंबर में। As we discuss कि जुलाई टू सितंबर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव किए, डायरेक्टर रिपोर्ट अप्रूव की, एजीएम कॉल कर दी। अब उसके रिगार्डिंग फाइलिंग्स करनी पड़ेगी। सेक्शन 137 E form AOC form. Company is required to file its final balance sheet along with statement of loss account, cash flow statement, director's report in this form within 30 days of holding of AGM. अटैचमेंट में आपको बैलेंस शीट लगानी पड़ेगी, P&L लगाना पड़ेगा, कैश फ्लो लगाना पड़ेगा, डायरेक्टर रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, ऑडिटर रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। तो कंपनी को विदिन 30 डेज ऑफ एजीएम में ये फॉर्म फाइल करना होता है। जैसा हमने डिस्कस किया 90% केसेस में एजीएम हमारी 30 सितंबर को होती है, तो इस फॉर्म को फाइल करने की जो ड्यू डेट आती है 29 अक्टूबर आती है, तो ये अक्टूबर टू दिसंबर में फॉल करेगा। कंप्लायंस नंबर 13 सेक्शन 92 ई फॉर्म एमजेटी 7। Every company will file its annual return within 60 days of holding of AGM. अब AGM होल्ड करने के 60 डेज में हमें MGT 7 फाइल करना होता है। जैसा हमने डिस्कस किया AGM हमारी मोस्टली होल्ड होती है 30 सितंबर तक, तो 60 डेज मतलब नवंबर, तो नवंबर में हमें ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है। अगर प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उस प्राइवेट कंपनी को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है MGT 8 में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। These are the 14 compliances of the private limited companies till quarter 3rd.
अब आते हैं क्वार्टर 4 जनवरी टू मार्च। प्रैक्टिकली जनवरी टू मार्च क्वार्टर में कोई मैंडेटरी कंप्लायंस नहीं होता है। फिर आते हैं बोर्ड मीटिंग पे। अब ये 14 कंप्लायंसेस के बाद भी कुछ ऐसे कंप्लायंस है जो प्राइवेट कंपनीज को करने पड़ते हैं, लाइक कंप्लायंस नंबर 15 बोर्ड मीटिंग। As per section 173 subsection 1 secretarial standard 1, every company shall hold minimum number of 4 meeting of its board of director every year in such a manner that maximum gap between two board meetings shall not be more than 120 days। पहली चीज, हर कंपनी को एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी है। दूसरी चीज, 2 बोर्ड मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, अभी भी कुछ लोगों के माइंड में कंसेप्ट है कि प्राइवेट कंपनी के केस में भी हमें क्वार्टरली मीटिंग करनी मैंडेटरी है या नहीं है। तो उस केस में आई वुड लाइक टू से, प्राइवेट कंपनी के केस में क्वार्टरली मीटिंग करना कोई मैंडेटरी कंप्लायंस नहीं है। प्राइवेट कंपनी को कहीं मैंडेटरी नहीं है कि उनको क्वार्टरली एक बोर्ड मीटिंग करनी है। प्राइवेट कंपनी को ईयरली 4 मीटिंग करनी है। बस एक चीज ये याद रखनी है कि 2 मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। Compliance number 16. Company will maintain following registers: register of director, register of shareholding, register of member, register of transfer। ये मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए मेंटेन करना। Compliance number 17, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एक ऐसा पॉइंट है, जब कंपनी एक्ट 2013 आया ना, उसमें एक पॉइंट डाल दिया। पहले होता था 1956 में ऑडिटर आप 1 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए अलाउड था। बट जब से कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है, ऑडिटर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते। ऑडिटर जो आपका अपॉइंट होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। उससे पहले कंपनी रिमूव करना चाहती है तो आरडी के अप्रूवल से रिमूव करे, उससे पहले ऑडिटर छोड़ना चाहता है तो रेजिग्नेशन दे। बट अपॉइंटमेंट के टाइम दोनों के पास पावर नहीं है कि 5 साल से कम के लिए अपॉइंट हो जाए। बिकॉज जो सेक्शन है हमारा 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उस सेक्शन में कहीं नहीं लिखा कि ऑडिटर 1 साल के लिए अपॉइंट होगा या 5 साल के लिए। उस सेक्शन में जो लिखा है वो ये लिखा है, ऑडिटर शैल बी अपॉइंट फॉर द पीरियड दिस AGM टू 6th AGM। दिस AGM टू 6th AGM मींस 5 ईयर। तो जो ऑडिटर अपॉइंट होगा 5 ईयर के लिए ही अपॉइंट होगा। These are the 17 compliances कि एक कंपनी वर्किंग है या नहीं है, एक कंपनी वर्क कर रही है नहीं कर रही है, एक कंपनी आप बोल सकते हैं कि कंप्लाइड है, सॉरी 1000 करोड़ टर्नओवर है, 0 टर्नओवर है। These are the 17 type of compliances जो एवरी प्राइवेट लिमिटेड को करने ही पड़ेंगे। उनके पास चॉइस नहीं है कि ये कंप्लायंसेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अब एक पॉइंट में जो डिस्कस करना चाहूंगा, मैंने पेंडिंग रखा। अब ड्यू टू कोविड-19 क्या सिचुएशन हो गई है, प्राइवेट कंपनी है, 2 डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया बैठा है, एक डायरेक्टर इंडिया में बैठा है। अब जब एक डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया बैठा है और दूसरा डायरेक्टर इंडिया में बैठा है, तो अब इशू क्या आता है ऐसे केस में? अब एक डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया बैठा है और एक इंडिया में बैठा है, ऐसे केस में इशू क्या आता है कि अब हम ऐसे केस में बोर्ड मीटिंग्स कैसे हेल्प करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कराने की जो बोर्ड मीटिंग्स है उनको कैसे कंडक्ट करें। तो उसके लिए भी मिनिस्ट्री ने जो पीछे प्रोविजंस आए थे, रिलैक्सेशन आई थी, मिनिस्ट्री ने उसके लिए एक रिलैक्सेशन दी कि इन केस दिस ईयर टिल 30th सितंबर, अगर 30th सितंबर तक आप अपनी बोर्ड मीटिंग करना चाहते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, फॉर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कर सकते हो। बट डेट याद रखिएगा 30th सितंबर। 30th सितंबर तक तो आपको अलाउड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग करके फाइनेंशियल अप्रूव करना, बट उसके बाद नहीं है। तो 30th सितंबर तक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड मीटिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करवा सकते हो, फर्स्ट थिंग। Second thing, अब as a professionally match, as a you all are the chartered accountant, approximately 50 chartered accountant are participating. अब as a professional अगर बात करते हैं, डायरेक्टर एक इंडिया के बाहर बैठा है, एक इंडिया में बैठा है। ऐसे केस में बोर्ड मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई, जूम पे मीटिंग हुई, किसी और एप्लीकेशन पे मीटिंग हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो गया, एग्री। बट अब वो साइन कैसे होगा? इंडियन डायरेक्टर ने तो साइन कर दिया,
अब या तो ये होगा इंडियन डायरेक्टर साइन करके फॉरेन डायरेक्टर को कोरियर करेगा, फॉरेन डायरेक्टर डिफरेंट डेट पे साइन करेगा और मेंशन करेगा और प्लेस मेंशन करेगा और इंडिया भेजेगा। उसके बाद बैलेंस शीट ऑडिटर के पास जाएगी, उस पे फिर ऑडिटर साइन करेगा, ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देगा, फिर कंपनी एक और बोर्ड मीटिंग बुलाएगी जिसमें वो ऑडिट रिपोर्ट और साइन बैलेंस शीट्स को अडॉप्ट करेगी। ये तो एक प्रोसेस है। अब दूसरी चीज है कि हम नहीं भेज सकते हैं, वहां भेजना पॉसिबल नहीं है, कोरियर नहीं हो सकता। तो अब सेकंड चीज में हमें क्या करना पड़ेगा, हम बैलेंस शीट्स फाइनेंशियल्स को डिजिटली साइन करवा लेते हैं डिजिटल सिग्नेचर से। एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, digital signature is nothing else. These are the signature of the person. This is just signature of the person which can be used digitally. तो ऐसे केस में क्या होगा, जनरली अब क्या होता है कि एज अ पर्सन मैं अपना साइन करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में कि एज अ ऑडिटर आप पे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आए, आपके ऊपर भी कोई इशू नहीं आए, आई विल सजेस्ट वन थिंग कि आप लोगों के जैसे जनरली क्या होता है कि डायरेक्टर्स के डीएससी प्रोफेशनल्स के पास है, दूसरे डायरेक्टर के पास होते हैं जो फॉरेन में है। आप उसका डीएससी मत यूज करो, आप उसका डीएससी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे अटैच करो तो टीम व्यूअर या एनी डेस्क पे उस डायरेक्टर्स को एक्सेस दे दो कि वो अपना पासवर्ड अपने आप फिल करके बैलेंस शीट को साइन कर दे। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने से यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सिग्नेचर, और ज्यादा से ज्यादा अपने रिपोर्ट के लिए आप उसकी रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की उस पर्सन ने अपने आप digital signature affix किए थे। So it will save you as a professional also, or it will help you to sign the financials also. But ऐसे केस में इस साल आप सब लोगों को as a professional एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर बैलेंस बोर्ड मीटिंग की डेट जिसमें बैलेंस शीट अप्रूव हुई वो और साइनिंग की डेट अलग है, तो आप सेम डेट पे ऑडिटर रिपोर्ट उसी मीटिंग में नहीं अडॉप्ट कर सकते। आपको एक डिफरेंट मीटिंग करनी पड़ेगी जिसमें आप साइन फाइनेंशियल एंड ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट को अडॉप्ट करेंगे। तो प्लीज दिस इज द मंथ ऑफ सितंबर, ये सभी प्लानिंग्स हमें सितंबर में ही करनी है। तो अकॉर्डिंगली प्लान करना कि आप 2 बोर्ड मीटिंग करना चाहते हैं, 1 बोर्ड मीटिंग करना चाहते हैं, कैसे साइन करवाना चाहते हैं, एडवांस में इस चीज को प्लान करके चलोगे इट विल गो स्मूथली, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, कुछ लोगों का क्वेश्चन है क्या 2 डायरेक्टर और ऑडिटर तीनों डिफरेंट प्लेस को डिफरेंट डेट में साइन कर सकते हैं? माय आंसर विल बी यस। अलग अलग डेट पे भी डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, अलग अलग प्लेस पे भी, और ऑडिटर भी अलग प्लेस और अलग डेट पे साइन कर सकता है। ओनली थिंग जो पर्सन साइन करेगा वो अपने साइन के नीचे लिख देगा डेट और प्लेस, दैट्स द ओनली थिंग, इसमें कोई इशू नहीं है। तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द वे आउट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दिस ऑल आर द मैंडेटरी कंप्लायंसेस फॉर द प्राइवेट कंपनीज। अभी चैट बॉक्स में आई थिंक 1 या 2 क्वेरीज थी अभी चैट बॉक्स में, वो मैं क्वेरीज ले लेता हूं। Meantime, I would request, my presentation is over here. अब किसी की कोई queries है तो please frankly you can ask the queries so that we can discuss on that also. एक query है अमित गोयल जी की, can paid up capital deposit in cash? If yes, whether should be deposited in bank? अब paid up capital को भी मैं अलग-अलग पार्ट में बात करता हूँ। एक होता है at the time of incorporation जो हमें subscription money मिली, एक है right issue of share, एक है private placement of share। प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन है 42। सेक्शन 42 में स्पेसिफिकली लिखा है कि सब्सक्रिप्शन मनी कैश में रिसीव नहीं हो सकती, तो वो तो बाहर चला गया। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन मनी जो इनकॉर्पोरेशन पे मिलनी थी या राइट इशू ऑफ शेयर। अब राइट इशू ऑफ शेयर या इनकॉर्पोरेशन में जो सब्सक्रिप्शन मनी थी उसमें कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्ट में कि आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो यू कैन रिसीव इन कैश, आपको बुक्स में कैश दिखा सकते हैं, बस आप इनकम टैक्स एक्ट का ध्यान रखिएगा कि लिमिट कितनी है कैश में रिसीव करने। सेकंड क्वेश्चन है मोहित जी का, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर रिसीव्ड बिफोर 1 अप्रैल 2014 नीड टू बी रिपोर्टेड, इट विल बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट और नॉट? सर अगर ओल्ड एक्ट में लोन लिया था शेयर होल्डर से तो वो अलाउड था। तो जब भी हम डिपॉजिट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस दिन लोन लिया था उस दिन क्या लो था, जिस दिन लोन लिया था उस दिन अलाउड था, जिस दिन लोन लिया था वो उस दिन आपको अलाउड था, तो यू आर अलाउड टू कंटिन्यू इट, बट आपको रिपोर्ट तो डीपीटी 3 में करना ही पड़ेगा। चाहे कंपनी की बैलेंस शीट में 1 रुपए का लोन खड़ा हो 31 मार्च को किसी से भी, चाहे डायरेक्टर से, बैंक से, डीपीटी 3 तो फाइल करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार जी का, काइंडली टेल whether a disqualified director whose office is automatically vacant is also required to file his KYC last year as per MCA side. All directors are required to KYC.
डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर के केस में भी आई वुड लाइक टू से यस, डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर को भी अपना केवाईसी तो लीगली फाइल करना ही पड़ेगा। Any member have any other queries, so you can ask me frankly। और जो ये प्रेजेंटेशन है ये तो मैं राजेश जी को शेयर कर दूंगा, तो राजेश जी कैन सर्कुलेट इट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर बेनिफिट। फर्दर आई नो डिपॉजिट इज द सेक्शन जहां पे सभी को बहुत प्रॉब्लम है प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड, तो मैंने अपना बीच में YouTube चैनल का भी नेम मेंशन किया है, बिकॉज डिपॉजिट्स के लिए बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती है, तो क्वेरीज को जॉट डाउन करके मैंने कुछ स्मॉल वीडियोस बनाई है 4 और 5 मिनट्स की, तो यू कैन वॉच दोस वीडियोस आल्सो फॉर द बेनिफिट्स दैट आर गिवन। फर्दर एजीएम एक्सटेंशन के रिगार्डिंग किसी को प्रोसेस देखना है या कोई ड्राफ्ट देखना है तो इट इज ऑलरेडी पब्लिश ऑन माय वेबसाइट, तो आप लोग वहां से भी इजीली चेक कर सकते हैं। नाउ इट इज ओवर टू राजेश जी। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you Thank so you, much. Director, for sharing your valuable knowledge with us. Now I request our branch Vice Chairman Sarajan for vote of thanks. Thank you, Rajesh ji. Profound members, thank you very much, sir, for sharing your wonderful knowledge with us, and thank you all the members for joining the webinar. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thanks to you, sir, and thanks to all the members for joining us. Thank you, sir.